Good evening, everyone. I myself, Advocate Dr. Chintan Pathak, on behalf of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries, especially welcome you all of you on the this specific occasion. Today's session is very important as far as the digital world is concerned. I really appreciate that the Banking Committee of the Chamber of Commerce and the Cyber Security Committee of the Chamber of Commerce jointly organized this session. And especially when I'm talking about the speaker is really a very good, and maybe that you can get introduction very shortly. एक बात कह के अपनी ये बात मैं कहना चाहूँगा छोटी सी, तुम्हारी इजाज़त के बिना अब बात न होगी, तुम्हारी निजता का अब कोई हार न होगी, डिजिटल दुनिया में भी तुम्हारा हक सलामत रहेगा, बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे डेटा की उचापत अब न होगी. So this is what exactly the DPDP Act and 2023. Of course, all acts have a different kind of pros and cons, but again that from the long waiting, આ એક બહુ મહત્ત્વનું જે પગલું છે જે 2023માં લેવામાં આવ્યું. કદાચ ઘણા સિનિયર સિટીઝન્સ છે જેમને ખ્યાલ હોય કે નહીં હોય, પણ જે લોકો બેન્કિંગ સેક્ટર સાથે જોડાયેલા મિત્રો અહીંયા જોઉં છું એ બધાને માટે આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. ફ્યુચરની અંદર આવતા 2 વર્ષમાં એક્ટ થોડો ઇવોલ્વ પણ થશે. 2025માં જેના રૂલ્સ આવ્યા જે છે એ રૂલ્સ પછી હવે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વિધિન 1 યરમાં કરવાની ગવર્મેન્ટે વાત કરી છે. સો અગેન દેટ આપણે આજના સેશનમાં હું બધાનું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી આવકારું છું અને આજના સેશનને ચાલુ કરવા માટે બેન્કિંગ કમિટીના ચેરમેન ડૉક્ટર જૈનાબેન ભક્તાને ખાસ વેલકમ એડ્રેસ કરવા માટે બોલાવું છું. મેમ પ્લીઝ. ગુડ ઇવનિંગ એવરીબડી. આજે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ અને આપણી સાથે જે સ્પીકર છે તે શ્રી રવિકિરણ મંકીકર સાહેબ છે ને એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણા સાયબર સિક્યોરિટી જે આપણી કમિટી છે તેના હેડ પર્સન શ્રી ચિંતનભાઈ પાઠકનું સ્વાગત છે. એના એડવાઇઝર વકીલ છે તે સ્નેહલભાઈ વકીલના એમનું સ્વાગત છે અને મારી સાથે બેન્કિંગ કમિટીમાં જે છે તે સીએ શ્રી મુકેશભાઈની સાથે આપ સૌનું અહીંયા સ્વાગત છે. થોડીક વાત આપણે બેન્કિંગને લગતી આપણે કરીએ તો જેમ ચિંતનભાઈએ કહ્યું તેમ 2025થી આ રૂલ આવી ગયો છે, પણ હજુ આપણે એની કોઈ વાતની કોઈ ખ્યાલ જ નથી કે એની ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે ખબર નથી. મારે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું રવિકિરણ સાહેબને સાંભળવાનું અને મને થયું કે આપણી બેન્કિંગ કમિટી અને બેન્કિંગ સ્ટાફ છે જે સુરતમાં તેમને આનો લાભ ચોક્કસ જ મળવો જોઈએ, એટલે એમની સાથે વાત કરીને આપણે આ પ્રોગ્રામ કર્યો. તો આ બધા આપ સારી સંખ્યામાં અહીં હાજર છો તેનું મને ખૂબ આનંદ છે. મેઇન વસ્તુ આમાં જે DPDPA એક્ટ છે ને જેમ ચિંતનભાઈએ કીધું તેમ હવે તમારી પરવાનગી વગર એ જે ઇન્ફોર્મેશન છે તે કોઈ વાપરી નહીં શકશે. આ એક એક્ટ એવો છે કે જે આપણે જો આપણે આપેલી જે ટાઈમ મર્યાદા છે એ જ રહે તો આવતા એપ્રિલ સુધીમાં આપણે પૂરેપૂરો એને લાગુ કરવાનો છે. પછી એ બેંક હોય, કોઓપરેટિવ સોસાયટી હોય કે કોઈ બી સંસ્થા હોય કે જે આપણા ડેટા લે છે. આપણે ઘણીવાર સિમ કાર્ડ લેવા જઈએ તો નથી આપણી પાસે આધાર કાર્ડ પેન કાર્ડ માંગતા, તો એ આપણો ડેટા છે. તો એ જ ડેટાને કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરવાનો છે અને કયા રૂલ હેઠળ કરવાનો છે સાહેબ આપણને સારી રીતે સમજાવશે અને શીખવાડશે. મોસ્ટલી ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં ચાલશે કેમ કે ગુજરાતી એમને નથી અનુકૂળ આવતું, પણ એમની લેંગ્વેજ એટલી સરળ છે કે આપણે સૌ એને સારી રીતે સમજી શકીશું. અત્યારે હું આની સાથે એમનું સ્વાગત કરું છું અને બીજું
ખાસ એમાં કહેવા માગું છું કે આ બધા એક્ટ આપણે પૂરા કરવાના છે. એમણે અત્યારે જ મને એક વાત કરી કે જો બેંકોને એક બીજી કેટેગરીમાં નાખવામાં આવશે, જે વાત એમ કરશે જ તેઓ, તો આપણે નવેમ્બર 26 સુધીમાં આ પૂરું કરવું પડશે. અને ધીસ ઇઝ નોટ અ સ્મોલ થિંગ, કેમ કે તમારે ડેટા પ્રોટેક્ટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં તમારા કસ્ટમર્સની પાસેથી લેખિત પરવાનગી લેવી પડે. એ લોકોને આ પરવાનગી આપ્યા પછી પણ તમારી પાસેથી ડેટા પાછો લેવાનો, એને સુધારવાનો, એને ઇરેઝ કરવાનો એ બધો હક પણ આપવો પડે. તમે કોઈ વસ્તુ કશે ચૂકી જાઓ, આ બધું તમારે એક ઓફિસર રાખવો પડે જે બધું કરે. અને તમે ચૂકી જાઓ તો તમને પેનલ્ટી કેટલી? અપ ટુ 250 crores. એટલે વિચાર કરો ને, આપણે તો ઓછું ગણીએ તો 1 કરોડ થઈ જાય તો આપણી બેંક કેટલી લાંબી થઈ જાય, અથવા તો આપણી સોસાયટી. બરોબર છે? તો આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એને તમે સાંભળો એમની પાસેથી, એવી મારી આશા છે. હું એવું માનું છું કે આ સેશન પૂરું થાય ત્યારે આપણા જ્ઞાનમાં સારો એવો વધારો થશે. થેન્ક યુ. Now I request Dr. Jaina Bhakta Madam and all the dignitaries on the dais to for the floral felicitation of the today's our guest speaker, Shri Ravi Kiran Manikar ji. Please. Sir, this is our specialty. Yes. तो ये हमारी ये है. मैम एक मिनट मैम, एक फोटो बाकी है. सामने जइए, ऊपर रहिए. एक ग्रुप फोटो मैम, તમે આવો જલ્દી. બસ, થેન્ક યુ. Now I request Dr. Snehal Vakilna to just provide the introduction of the today's our guest speaker. Snehal bhai, please. Well, I am Dr. Snehal Hemant Kumar Vakilna. I am an international cybercrime lawyer, data protection and AI specialist. And I am very happy to be on the other side today. And it is my privilege to introduce Sir. The name of our today's speaker is Mr. Ravi Kiran Mankikar. It's kind of Sir ने हमेशा अपने मन की ही की है, so that would be the perfect name. So Sir has more than 30 years of experience in the field of banking, technology and digital banking system. Well, Ravi Kiran Sir retired as the Chief General Manager of SVC Cooperative Bank. He has several professional certification as Certified Information System Auditor, Certified in Governance of Enterprise IT, Certified Information System Banker, DSCI Certified Data Protection Officer, जो आज के लिए बहुत important है for all of us. Similarly, Sir had received more than 50 awards in field of IT, including CTO of the Year, CIO Gold Award, CIO 100 Award, Best CIO of the Year Award and Outstanding Achiever Award. So Sir, please give the big applause. Not only this, but Mankikar Sir had played an important role in developing the Genius Core Banking System, CBS system, which is now being used around by 95 cooperative banks. And under the leadership of Sir, bank had established a 3-tier standard data center. Similarly, achieved an international certification like ISO 27001 for information security. As an international cyber lawyer and being the advisor of Cyber Security Committee of Chamber of Commerce, I really understand the importance of this subject. And now I would like Sir to say few words and take the session ahead. It's over. Dr. Jaina bhai, Dr. Chintan ji,
डॉक्टर स्नेहल जी, श्री महेश जी और सारे उपस्थित महानुभाव, आज का अभी आने के पहले मैं जैनाबिन जी से यही कह रहा था कि मैं नवंबर से बहुत सारे ग्रुप्स में डाल रहा हूँ कि थोड़ा अवेयरनेस ले लो, हम हैं देने के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी टू से कि सूरत हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी टू हैव सच अ फोरम फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ डीपीडीपी एक्ट और उसका इम्प्लीकेशंस हमें क्या है। मैं आज एक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, यह कौन सा सेक्शन है, क्या है, उसके साथ वकील साहब हैं तो मैं सिर्फ उसका, हम बैंकों के लिए क्या उसका इम्प्लीकेशंस है उसकी बात करने जा रहा हूँ। सो आज का जो विषय है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये क्यों आया एक्ट और इसका महत्व क्या है, उसके प्रोविजंस क्या क्या है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है और उसके जो घटक है एक्ट के वो क्या क्या है और हमें उससे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए what steps we need to take. So this is what we'll try to cover today. I had actually planned a elaborate pravachan, लेकिन जैनाबिन ने बोला कि थोड़ा कम करना. Anyway, doesn't matter. So we'll create first need for data protection. क्यों? ये अगर आप स्लाइड देखेंगे, it just shows the quantum of data breach. डेटा ब्रीच का मतलब साइबर अटैक नहीं है, आप एक समझे, साइबर अटैक अलग है और डेटा ब्रीच अलग है। डेटा ब्रीच यानी क्या कि मेरा डेटा एक अनऑथराइज्ड पद्धति से कोई उसको एक्सेस कर रहा है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक पिक्चर फ्लोट हो रहा था कि कोई भेल खा रहा है और वो भेल खाने का जो पेपर है दैट वाज एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑफ अ बैंक। यानी जब भी हम ये डिस्पोज ऑफ करते हैं ये भी डेटा ब्रीच हो गया, बिकॉज दैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हैविंग सम इंफॉर्मेशन। सो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा ब्रीच। सो राइजिंग साइबर क्राइम, आज जिस रेट से साइबर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं उसका एक अगर हम देखेंगे कारण है कि हम हमारे क्रेडेंशियल्स शेयर करने में झिझकते नहीं हैं। अगर मैं मेरी लड़की होता और सूरत आता था तो फेसबुक पे पहले डालता था एक्साइटेड टू गो टू सूरत। सूरत पहुंचने के बाद, या मैंने देखा नहीं लेकिन कई जगह रहते हैं आई लव सूरत करके एक बोर्ड रहता है, उसके सामने जाके एक पिक्चर लेने का अराइव्ड इन सूरत। कहने का मतलब क्या है कि हम जानते या जानते हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। बच्चों में ये जरा क्रेज है कि हम ये शेयर करें, लेकिन उसका फायदे दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उसका कभी हमने विचार किया क्या? सो जब ये सब होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बहुत से इंस्टीट्यूशंस क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स होते हैं, यानी बिटवीन कंट्रीज ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिटवीन कंट्रीज ट्रेड होता है वगैरह वगैरह। सुबह साहब मिले थे तभी एक बात हुई थी, इतनी जल्दी क्यों किया है हमने इंडिया में? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? 195। आउट ऑफ 195 कंट्रीज 130 ने ऑलरेडी किया हुआ है समथिंग सिमिलर टू डीपीडीपी एक्ट, और भारत अब करने जा रहा है। सो वी आर ऑलरेडी लेट। बाकी के कंट्रीज ने ऑलरेडी कर लिया है, उसके अलग अलग नाम रहेंगे। द मोस्ट फेमस इज GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। सो ये सबसे कॉमन है बट विच इज रिलेटेड टू द यूरोपियन कंट्रीज। सिमिलरली US में उसको CCPA कहते हैं।
देन वी कम टू इंडिया, उसमें ये इसको हम डिजिटल प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसका शुरुआत कभी हो गई 2017 में। पुट्टुस्वामी करके एक जज थे, ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, उसका एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो रहा है। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2017 में कि गवर्नमेंट हैज टू फ्रेम अ लॉ टू मेक द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी राइट्स। और 2017 से वो फ्रेम होते 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 नवंबर 23 में वो हो गया। एंड उसके रूल्स फिर वापस बहुत चर्चा हो गई कि रूल्स कैसे होने चाहिए, एंड दैट केम इन नवंबर ऑफ 25। सो 23 दिसंबर 23 में ये एक्ट पास हो गया, प्रेसिडेंट जी ने उस पर हस्ताक्षर किए, वो लॉ हो गया। और 13 नवंबर 2025 में उसके रूल्स पब्लिश किए गवर्नमेंट ने। और जो भी संस्था कोई भी पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही है उसे ये लागू कर दिया गया। और इसका प्रैक्टिकल चालू कब होता है? 18 महीने की कालावधि दी। सो 13 नवंबर 25 से 18 महीने अगर पकड़ेंगे तो 13 मई 2027 तक हमें सबको टाइम फ्रेम की मोहलत दी गई है कि आप डीपीडीपी एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के स्टेप्स ले लो। उसमें मेन स्कोप क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा जो भारत में होना चाहिए, जो आउटसोर्सिंग बाय इंडियन एंटिटीज किया होगा तो भी वो कवर्ड होता है, इंडियन यूजर्स के लिए भी होता है, और संपूर्ण जो डिजिटल फॉर्म में है वो कवरेज उसका है। जो डेटा फिजिकल फॉर्म में है, पेपर में, वो इस पे कवर्ड नहीं है। सो ये जो शब्द है पहला डिजिटल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां जहां आप डिजिटाइज करेंगे। एक मुझे पूछा गया, मैं जेरोक्स निकालने के लिए जाता हूं और वो जेरोक्स वाला उसकी कॉपी रख देता है या उसके मशीन में स्टोर होता है, उसको लागू है क्या? हाँ, लागू है। भले आपने पेपर का जेरोक्स निकाला है लेकिन उसके मशीन में वो स्टोर है और उसके आप जाने के बाद कॉपीज निकाल सकता है, तो ये डीपीडीपी एक्ट उसको भी लागू है। सो ऐसे आप नहीं समझो कि हम बैंक है, बैंक को ही लागू है या कोई संस्था को लागू है, ऐसे नहीं। जो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी करता है, लेता है, सबको ये लागू है। इसमें क्या क्या भाग हैं? डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन, कंसेंट एंड फेयर प्रोसेसिंग। यानी चिंतन जी ने एक शेर कहा कि डेटा लेने के पहले हमारी इजाजत लो। अभी कल आई चेक्ड इन टू अ होटल, रात को मैं आया और उसने हाँ आइडेंटिटी मांगा, तो मैंने आधार दिया, तो मैंने बोला मैं नहीं दूंगा। बोलता है नहीं नहीं ज़रूरी है। मैं बोला मेरा कंसेंट कहाँ लिया? तो बोलते किस बात का कंसेंट, ये तो नियम है। मैं बोला आपको डीपीडीपी एक्ट का मालूम नहीं लगता है? ऐसे आफ्टर May 27 अगर आपने बगैर मेरी इजाजत मेरा आधार लिया तो आई कैन टेक यू टू कोर्ट। सो ये आप भी ध्यान लेना चाहिए कि कोई आपका अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है, आपके इजाजत बगैर वो नहीं ले सकता। बहुत महत्व का है। सो उसमें यूजर राइट्स डिफाइन किए हुए हैं ये एक्ट में। यूजर यानी हम, वी आर द यूजर्स। इसमें एक्ट के अंदर उसको एक टर्मिनोलॉजी दी है, विल कम टू दैट। फिड्यूशियरी यानी जो ले रहा है इंफॉर्मेशन, जो ले रहा है उसका नाम है फिड्यूशियरी। उसको अकाउंटेबल किया है, दैट ही इज अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट्स। एम्पावरिंग डेटा प्रिंसिपल्स, उसको एक अधिकार दिया हुआ है जो दे रहा है इंफॉर्मेशन। पहले उनको वो अधिकार नहीं था, हम ऐसे ही बांटते थे हमारा इंफॉर्मेशन। अभी सबको अधिकार दिए हुए हैं। वो क्या अधिकार है हम देख लेंगे। और जैसे डेटा ब्रीच मैनेजमेंट हुआ, हमारा डेटा फैल गया, तो उसको कंटेन कैसे करने का, उस पर नियमित कैसे करने का, उस पर डेटा ब्रीच मैनेजमेंट। और ये सब नहीं होना
करके डिटरेंस दिया है, पेनल्टीज। यार पेनल्टीज बहुत सिंपल है, अप टू 250 करोड़ पर इंसिडेंट। ओके, यानी आप ये साल में कुछ हो गया आपको 250 करोड़, अगले साल में आपको लगा फिर से ट्राई करते हैं, तो ऐसे नहीं, अगले साल भी आपको लग सकता है। अभी उसके उन्होंने कहा है कि देयर इज अ फाउंडेशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन। उसमें उन्होंने 8 मुद्दे लिखे हुए हैं कि जब भी कोई डेटा कलेक्ट करता है, इट हैज फॉर अ लॉफुल पर्पस विथ फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी किसके लिए ले रहा है वो मुद्दा आपको बोलना चाहिए, आपको नोटिस देनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो हमसे हमारा डेटा मांगता है, he has to do it in a lawful process and he has to tell me why he is taking that data. Purpose limitation, he can use it only for the purpose for which he has given me notice. यानी जिस काम के लिए उसने मुझे कहा कि मैं आपका डेटा ले रहा हूं, उसी काम के लिए वो वापर सकता है वो डेटा। देना नहीं देना मुझ पे निर्भर है। सो देयर इज अ कंसेंट टू बी गिवन, विदाउट कंसेंट नोबडी कैन यूज माई डेटा। डेटा मिनिमाइजेशन, जितना चाहिए उतना ही ले। अभी एक किस्सा मैं कहता हूँ कि हम बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखते हैं, 10-12 पन्ने का बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहता है। कभी हमने पढ़ा है, देखा है वो डेटा इतना क्यों लगता है? बैंक को अगर पूछेंगे तो नहीं, अब फॉर्म ऐसा है, आपको देना है। बट नाउ द सिचुएशन विल चेंज। बैंक को आपको बताना पड़ेगा कि ये डेटा क्यों ले रहे हैं, एंड कहाँ रखेंगे, एंड कब तक रखेंगे, और जब ये काम हो जाएगा वो नष्ट करने की जिम्मेदारी उनका है। सिर्फ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पे। उसको एक्यूरेट रखना और कोई जाके उसमें बदलाव नहीं करे, उसकी जिम्मेदारी भी उसकी है। इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट। फिड्यूशियरी हैज टू एंश्योर कि वो बदल नहीं पाए कोई डेटा। स्टोरेज लिमिटेशन, कि डेटा उतना ही रखो कितना, मैंने अभी कहा, कब तक रखेंगे आप डेटा? मैं आपका ध्यान है कि नहीं देखने के लिए मैं पूछ रहा हूं। मैंने पहले कहा जिस काम के लिए मैं ले रहा हूं वो काम खत्म होने के बाद मुझे डेटा डिलीट करना है। सो तब तक मुझे रखना है। सो रिटेन डेटा एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड फॉर विच पर्पस हैज बीन डिफाइंड, और उसको सुरक्षित रखने का, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एंड जो यूजर के राइट्स हैं, वो राइट्स का संपादन करने कि उसके उल्लंघन कहीं नहीं हुए, वो रखने की भी जिम्मेदारी मेरी है। वो क्या है, विल कम टू दैट। 3 मेन पार्ट्स। अकाउंटेबिलिटी has been established. Who is accountable? Fiduciary is accountable. Fiduciary यानी जो डेटा लेता है। और there has to be privacy by design and default. यानी आप बोलेंगे तो मैं उसको सेफ रखूंगा, ऐसे नहीं। पहले से मैं सेफगार्ड क्या रखूंगा वो मुझे पहले से ही तय करके उसको रखना है। So ये 4 टर्म्स हम बार बार सुनेंगे। डेटा प्रिंसिपल, यानी जो डेटा दे रहा है उसको आइडेंटिफाई किया है ये नाम से, डेटा प्रिंसिपल। जो डेटा ले रहा है उसका टर्म है डेटा फिड्यूशियरी। जो बहुत बड़ी संख्या में डेटा ले रहा है उसका नाम दिया है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी।
significant data fiduciary will be designated by government and MeitY, that is Ministry of IT and Electronics. लेकिन there is a strong possibility कि सभी बैंकों को SDF करके कैटेगराइज करेंगे. अभी उसका क्या महत्व है, विल कम टू इट. डेटा प्रोसेसर यानी क्या, जो उसका वापर करता है या करवा के लेता है. अभी मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव ATMs. ओके, ATM का स्विच किसके पास है? डेटा प्रोसेसर, थर्ड पार्टी. ओके, ATM कार्ड कौन बनाता है? थर्ड पार्टी. सो दे बिकम द डेटा प्रोसेसर्स. और इसका रेगुलेटर कौन है? लॉक कौन मॉनिटर करेगा? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड. सो जैसे BR Act इज गवर्न्ड बाय RBI. RBI is the regulatory body. So data protection board is the regulatory body for this. PII में क्या क्या आएगा? लिखा है नाम, गांव, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर, पान रहेगा, आधार रहेगा, पासपोर्ट नंबर रहेगा, मेरा हेल्थ डेटा रहेगा, वगैरह वगैरह. अभी दो चीज महत्व के हैं. इट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल्स. आपके पास अगर कंपनी का अकाउंट रहेगा, then details to that company are not covered under this act. But उनके डायरेक्टर्स रहेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, उनका डेटा कवर्ड है. सो इंडिविजुअल डेटा एंड इन डिजिटल फॉर्म. सो जो भी डिजिटल फॉर्म में है वही इस पे लागू है. सो इट कुड बी personal identifiers, it could be financial and transactional data, it could be professional educational data, it could be, अभी जैसे RBI ने कहा है जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, वो कहाँ से आता है उसका आप ट्रैक रखो. तो अगर मैं ये लैपटॉप से करूँगा तो मेरी IP एड्रेस, मेरा MAC ID वगैरह सब कैप्चर होता है. वो भी इज कंसिडर्ड एज PII. इट इज नॉट जस्ट माई नेम एड्रेस. क्यों? Because that ID is identifying me as the user. So कोई भी information can be directly linked to an individual gets covered under this act. अगर मैंने ईमेल भेजा, वो ईमेल में अगर मेरा नाम का पता रहेगा, that is also covered. आज सुबह एक चर्चा में बात कर रहे थे, बहुत सारे बैंक्स में टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन द बैंक डिपार्टमेंट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं. और व्हाट्सएप ग्रुप में हम बहुत आपस में चर्चा करते हैं, अरे आपने इसको लोन देने का था, क्या हो गया, उसका ये डॉक्यूमेंट्स आया क्या? वो भी कवर्ड है. कल अगर जाके आपका व्हाट्सएप ब्रीच हो गया और वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई और प्रूव हो सकता है कि आपके वजह से हो गया, यू आर इन प्रॉब्लम. बिकॉज दैट डिटेल्स आर इन डिजिटल फॉर्म. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. नाउ वी कम टू categories which require enhanced protection. ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए. Sensitive data, health data. Now, in many cases, there are sexual preferences. Many times people take that data. So all that data is categorized as sensitive, and there is a very great कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए. Because that individual's integrity or reputation can also be compromised. Child data. Child data क्या है? जो भी व्यक्ति 18 साल के नीचे है उसका डेटा अगर आप कलेक्ट करते होंगे तो उसमें दो चीजें हैं. उसका एज आपको वेरीफाई करना है और दूसरा जो गार्डियन है या पेरेंट है उसकी
entity has to be verified. So verifiable consent, not just consent, कि वो देने का अधिकार उसको है कि नहीं, ये भी आपको देखने का है. ये बीआर एक्ट में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये डीपीडीबी एक्ट में लिखा है. सो जो चाइल्ड डेटा प्रोटेक्शन है उसमें दूसरा एक बात है, विल कम टू दैट लेटर ऑन, बट सिंस वी आर ऑन द टॉपिक मैं आज अभी बोल देता हूं. वी कैन नॉट डू मार्केटिंग यूजिंग चाइल्ड डेटा. अगर हमने कहा कि आपके पास एजुकेशनल लोन है, वी कैनॉट से कि मैंने मेरे एमआईएस निकाला और देखा कि ये चाइल्ड है करके मैंने उसको मार्केटिंग का एसएमएस भेजा. नहीं कर पाएंगे. इवन इफ देयर इज कंसेंट, चाइल्ड डेटा इज प्रोटेक्टेड एंड दैट प्रोटेक्शन इज मोर सिवियर देन जनरल प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट डेटा. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में क्या है कि उनका फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मेंटल एट्रीब्यूट्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वगैरह जो भी है कैन नॉट बी मेड पब्लिक. यू हैव टू सेफगार्ड्स. नाउ दिस मे बी मोर रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स जो टेस्ट करते हैं या इलाज करते हैं या डॉक्टर्स है या साइकियाट्रिस्ट है वगैरह वगैरह. दे कैन नॉट डिस्क्लोज दिस. आप पैथोलॉजी लैब में जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, एंड टुमारो इफ यू आर डिटेक्टेड विद अ सीरियस एलिमेंट, they cannot disclose it. That is also getting protected under this. So critical personal data is very important for so protection of child data. ये हमने कहा कि जो भी there are safeguards. Parental consent is mandatory. Age verification has to be done. Processing has to be limited only for the purpose for which you have taken the data. No analysis, no targeted marketing, और कहीं भी उसका दूसरे कोई तरीके से उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए. सी इसमें सबसे ज़्यादा पेनल्टीज आर देयर फॉर चाइल्ड डेटा, एंड मोर इम्पॉर्टेंट यू हैव टू टेक केयर दैट दैट डेटा कैनॉट बी मिसयूज्ड इन अ मैनर विच विल कॉज हार्म टू द चाइल्ड. बिकॉज जिस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है या यानी मिसकॉन्डक्ट विद चिल्ड्रन वगैरह हो रहा है, उसका सेफगार्ड्स बहुत ही स्ट्रिक्ट किए हुए हैं. सिमिलरली प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. अभी इसमें एक मुद्दा है जो एज बैंकर्स हमें जरा डिफरेंशिएट करके सोचना है. देयर इज अ राइट ऑफ नॉमिनेशन. बैंकर्स में व्हाट इज राइट ऑफ नॉमिनेशन? कि अगर मुझे कुछ हो गया, द नॉमिनी इज द कस्टोडियन ऑफ माई अकाउंट इन एज पर बीआर एक्ट. एज पर डीपीडीपी एक्ट, he becomes the data principal on my behalf and I am giving that right to him. So I am having a right to nominate someone to function as a data principal to give data whichever is required. वो फर्क है. There is no that BR Act के अंदर का nomination rights is not here. This right to nominate is different. यहाँ भी कंसेंट है, यहाँ भी गार्डियन है, यहाँ भी पेरेंटल कंसेंट जैसा कंसेंट हैज टू बी वेरीफाइड कि जिसको वो राइट दिया है, नॉमिनेशन दिया हुआ है, ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी और ही हैज़ दैट लीगल स्टैंडिंग. ये सब आपको वेरीफाई करना है. एक्सक्लूजन्स आई टेक लेटर ऑन बिकॉज दैट इज जनरल फॉर अक्रॉस ऑल. Now, what is not covered under the Act? एक मैंने कहा that which is in physical form. Alongside that, which is publicly available. So जहाँ publicly available जो है is not covered in this because that is for it is in the public domain. जो मैंने मेरे पर्पस के लिए लिया है as an individual for purpose personal use, not covered. That which is collected by the government for whatever regulatory purpose, statutory purpose, their purpose is not covered. And that which is in non-digital form, जो physical form में है,
is not covered. Now this you have to understand very. There is difference between privacy and protection. Privacy यानी secret रखना, protection यानी सुरक्षित रखना. Privacy is about permission and rights. Protection is about security and compliance. और ये दोनों का हमको देखना है कि हम उसकी secrecy भी maintain करें और उसकी security और compliance भी maintain करें. बट दोनों का अर्थ अलग अलग रहता है. कीपिंग समथिंग प्राइवेट एंड कीपिंग और प्रोटेक्टिंग समथिंग. सो फॉर अ कंप्लायंट फ्रेमवर्क क्या क्या करना है? ऑब्टेन कंसेंट, ये विल कम दैट इन डिटेल. नाउ राइट्स ऑफ अ डेटा प्रिंसिपल, हम पहले एक जिक्र किया था कि मैं डेटा दे रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो ये एक्ट ने मुझे कोई अधिकार दिए हुए. राइट टू एक्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर मैंने आपको एज अ फिड्यूशियरी डेटा दिया हुआ है, वो आप क्या रखे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखने का अधिकार मुझे है. आई कैन गिव अ नोटिस टू द फिड्यूशियरी एंड से शो मी माई डेटा. और ये 30 दिन के अंदर डेटा फिड्यूशियरी हैज टू कंप्लाई विद दैट. राइट टू करेक्ट एंड इरेजर, कि अगर उसमें कोई तफावत दिखी देन आई कैन गिव अ नोटिस फॉर करेक्शन. इरेजर यानी अगर मुझे लगा कि कोई मेरा डेटा हमें गलती से दिया था, अभी मुझे नहीं देना है, आई कैन आस्क फॉर डिलीशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड विड्रॉल. अभी इसमें एक कैविएट है. आप बैंक हो, आप केवाईसी लेते हो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूज फॉर बैंकिंग पर्पस. इट कैन नॉट बी डिलीटेड एंड इट कैन नॉट बी विड्रॉन. लेकिन अगर मैंने आपको पहले परमिशन दिया था कि यू कैन यूज माई डेटा फॉर मार्केटिंग, और बाद में मुझे लगता है नहीं, ठीक नहीं है, और मैं वो परमिशन विड्रॉ करता हूँ, दैट इज अलाउड बिकॉज दैट इज नॉट माई कोर बिजनेस. फिड्यूशियरी का कोर बिजनेस इज नॉट मार्केटिंग, सो दैट कैन बी विड्रॉन. ओके. राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी अगर मुझे कोई कंप्लेंट है, मुझे कंप्लेंट करने की, उस पर सुनवाई होने की अधिकार है मेरा. राइट फॉर डेटा पोर्टेबिलिटी, अगर मुझे एक फिड्यूशियरी से दूसरे फिड्यूशियरी के पास जाना है, आई हैव दैट राइट. एक सिंपलिस्टिक टर्म में मैं आपको समझाता हूँ. मेरे पास वोडाफोन का फ़ोन नंबर है, वोडाफोन का सर्विस बेकार है, मुझे जाना है एयरटेल के पास, दैट इज चेंजिंग. सो आई एम चेंजिंग फ्रॉम वन सर्विस प्रोवाइडर टू अनदर, दैट इज अलाउड. बट आई कैन नॉट पोर्ट डेटा विच अगेन कम्स अंडर लेजिटिमेट यूज, यानी जो और एक्ट्स के अंदर रहते हैं उसको मैं बदल नहीं सकूंगा, मैं निकाल नहीं कर सकूँ. आई कैन नॉट इन्फ्रिंज एनी अदर एक्ट बिकॉज ऑफ डीपीडीपी एक्ट. राइट टू कंसेंट मैनेजमेंट, यानी मुझे कंसेंट देने का भी अधिकार है, कंसेंट विड्रॉ करने का भी अधिकार है. एंड राइट टू नॉमिनेट, जैसे मैंने कहा किसी को अगर मुझे नॉमिनेट करना है, वो नॉमिनेशन का भी अधिकार है. फिड्यूशियरी यानी बैंक या जो भी डेटा कलेक्ट करता है, उसके क्या ऑब्लिगेशंस है. नाउ दिस इज नॉट अधिकार, ये उसका अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट लॉफुल कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन हैज टू बी फॉर अ लॉफुल पर्पज. यूज डेटा ओनली फॉर द स्पेसिफाइड एंड लेजिटिमेट पर्पज. जिस काम के लिए मैंने नोटिस दिया था और कंसेंट लिया था, उसी के लिए वापरने. obtain record and manage consent, this is very very important. सभी को कंसेंट जो लिया हुआ है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. क्यों? कि अगर डिस्प्यूट होए और कल जाके प्रिंसिपल ने बोला कि आपने बगैर मेरे इजाजत के
डेटा का यूज किया हुआ है, डू यू हैव प्रूफ दैट यू हैव टेकन कंसेंट? इट हैज टू बी देयर। सो नोटिस, कंसेंट, पर्पस, एक्टिविटी, उसका एक कोरिलेशन करना पड़ेगा हमको। उसको सिक्योर रखने का एंड प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी हमारी है। डेटा मिनिमाइजेशन, सम ऑफ दिस विल बी रिपीटेड बिकॉज एक्ट के हिसाब से और फिड्यूशियरी के हिसाब से सर्टन थिंग्स विल बी देयर। एक्यूरेसी, क्वालिटी, यस। ट्रांसपेरेंसी, कि मैं जो भी करता हूँ सब पारदर्शक होना चाहिए, नो हिडन एजेंडा। डेटा ब्रीच अगर हुआ, आई हैव टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल कि आपका डेटा गया है विद इन 72 आवर्स। I also need to inform the DPB, Data Protection Board, within 72 hours. Then retain data and delete data on the purpose getting over. आपने अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत डेटा लिया था, कंसेंट भी लिया था, अकाउंट क्लोज हो गया, क्या करेंगे आप? डिलीट करेंगे? बीआर एक्ट क्या कहता है? रखना है। आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो उसको आपको एक्टिव डेटाबेस से निकाल के बाहर रखना है, लेकिन डिलीट नहीं करना है, बिकॉज यू आर गवर्न्ड बाय बीआर एक्ट ऑल्सो। सो अगर डीपीडीपी एक्ट कहता है कि उसका काम होने के बाद आप नष्ट करो, लेकिन बीआर एक्ट कहता है नहीं, 7 साल या 12 साल या जो भी है आपको रखना है, तो उतने दिन आपको रखना है, और वो दिन होने के बाद देन इट इज इनकम्बेंट ऑफ यू टू डिलीट दैट डेटा। फिर आप नहीं रख सकते। अब एक उदाहरण देता हूँ, आई मीन विद नो ऑफेंस टू एनीवन। मैं श्यामराव विठल बैंक से आया हूँ, 110 साल की बैंक है, 110 साल से डेटा कैरी कर रहे हैं। उसमें से कई कस्टमर्स होंगे नहीं होंगे पता नहीं, वो जूना डेटा भी हम नहीं रख पाएंगे। सिमिलरली देयर कुड बी सम बैंक्स हियर जहां आपके कस्टमर का आता पता नहीं है, यू वोंट बी एबल टू कीप दैट डेटा। तो वो आपको सोचना है। अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये सब क्यों? बिकॉज compliance to the directions of the DP board, very important. Consent management is the most critical part of the DPDP Act. हर चीज के लिए आपको कंसेंट लेना है। You have to inform the individual किसके लिए करें, इसको बोलते हैं नोटिस। सो आपको नोटिस देनी है कि मैंने आपसे ये डेटा लेना है, इस कारण लेना है, ये काम करेंगे, वो होने के बाद मैं उसको नष्ट करूंगा, उसका रिकॉर्ड रखना है। और ये जो विड्रॉल का जो भाग है, वो जब तक नहीं होता आपका कंसेंट मैनेजमेंट पूरा नहीं होता। एंड विड्रॉल ऑफ कंसेंट is an option to be given to the principal. प्रिंसिपल को देना चाहिए कि मुझे विड्रॉ करने का ईज, यानी देयर आर नो कंडीशंस। सो कंसेंट नोटिस, कंसेंट रिकॉर्डिंग, कंसेंट ट्रैकिंग, एंड मोर इंपॉर्टेंट इसका कोरिलेशन। जैसे मैंने कहा, नोटिस है, कंसेंट है, पर्पस है, एक्टिविटी है, ये पूरे का आपको कोरिलेशन रख के उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। व्हाई? कंसेंट हैज टू बी फ्री। फ्री यानी मुफ्त नहीं, फ्री यानी विदाउट प्रेशर, फ्री यानी विदाउट कोअर्शन, जबरदस्ती में नहीं, बाय हिज ओन फ्री विल वो आपको कंसेंट देगा। इट हैज टू बी स्पेसिफिक। जिस काम के लिए दिया है वो कारण बताना चाहिए, उसी कारण के लिए वो कंसेंट है। इसका मतलब क्या है? 10 चीजें हम इकट्ठा डाल के नहीं ले सकते। 10 चीजें डाल के सबको टिक मार्क किया हुआ है एक्सेप्ट ऑल नहीं कर सकते।
सबको इंडिविजुअली टिक मार्क करके उसने एग्री करना चाहिए. देयर इज नो क्लबिंग ऑफ पर्पसेस, ये ध्यान में रखना चाहिए. ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड विथ क्लियर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ये क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे. अनएम्बिग्यूअस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिटवीन द फिड्यूशियरी एंड द प्रिंसिपल. एंड सिमिलरली फिड्यूशियरी एंड प्रोसेसर. अगर कोई आपके बिहाफ पे कोई डेटा प्रोसेस कर रहा है, उसे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसको क्या करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड कंसेंट. And there has to be a ease of withdrawal. So this is the life cycle. ये सभी चीज़ें हमें करनी हैं और ये सभी चीज़ें सिस्टम ड्रिवन होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी मैं उसका रिकॉर्ड फाइल में रखूंगा. क्यों? Ease of withdrawal. I have to give the facility to the principal to withdraw. अगर मैं फाइल में पेपर रखूंगा तो उसको ease of withdrawal नहीं कहते. He has to have access to my consent. This is very nice. Notice and consent has to be in 23 languages. English and 22 languages which have been notified. भले वो वापरो नहीं वापरो, भले आप उसका उपयोग है नहीं है, फैसिलिटी होनी चाहिए. अगर कल मैं जाके बोला आई एम अ तमिलियन, मुझे सिर्फ तमिल आता है और कुछ आता नहीं है, यू कैन नॉट से कि हम सिर्फ गुजराती में बात करेंगे या सिर्फ हिंदी में बात करेंगे. नहीं, नोटिस एंड कंसेंट हैज टू बी इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, एनी. एंड दैट ऑप्शन हैज टू बी गिवन टू द प्रिंसिपल टू डिसाइड कौन से लैंग्वेज का वो वापर करेगा. वी कैन नॉट इम्पोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी विड्रॉल ऑफ कंसेंट, क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं. इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि अगर मैंने कंसेंट किसी का दिया था, उसका कुछ उद्देश्य था. अगर मैंने वो विड्रॉ किया, उसका मतलब क्या है कि वो उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा. वो जानकारी उसको होना चाहिए. दैट individuals bear the consequences of withdrawal, such as losing access to a service for which consent was given earlier. So it is very very specific. Non-retroactive, यानी पहले मैंने कंसेंट दिया था, तभी कुछ काम हुआ था, अभी मैं जाके विड्रॉ करता हूं, मैं ये बोल नहीं सकता कि अरे पहले भी कभी नहीं, वो गलत था. नहीं, आज अगर मैंने विड्रॉ किया, आज के बाद का वो विड्रॉल लागू पड़ेगा. जो पहले हो चुका है उसका नहीं. रियल टाइम, दिस इज वाई, जो मैंने बोला ना फाइल में रखे नहीं होगा. जो विड्रॉल का रिक्वेस्ट जाता हूँ हैज टू हैपन इन रियल टाइम. मैंने यहाँ दिया, वो तो दिखना चाहिए कि मेरा कंसेंट विड्रॉ हुआ है. एंड एक्सेप्शंस, जैसे मैंने कहा KYC is mandated. I cannot withdraw consent for KYC. एक उदाहरण दिया. But I can withdraw consent for marketing. इसका क्या करेंगे? लेगेसी डेटा, यानी अभी ये लागू कब से होगा? As of today, let's assume May 2027. मई 2027 के पहले अगर आपने कोई डेटा लिया होगा तो कंसेंट मैनेजमेंट उसको लागू है क्या? है. You have to take one time no consent because that data you are going to use after that. So even if that data is as legacy, you have to take consent and keep that on record. अभी उसको you need not take all पहले का, यू टेक वन पेजर कि मैंने ये डेटा लिया था, अभी लिया था, ये है वगैरह वगैरह वगैरह, और आपका कंसेंट है. डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड दैट कंसेंट इन योर रिकॉर्ड्स. आपको भी मालूम होना चाहिए कि कौन से चीज़ का कंसेंट आपने लिया है, कौन से चीज़ का कंसेंट आपके पास नहीं है,
और ऐसे कौन से चीजें आप कर रहे हैं जिसके पास आपका कंसेंट नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे कोई चीज आपने की जिसका कंसेंट आपके पास नहीं था, 250 करोड़ पक 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 हो रहे हैं वहां। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। डेटा मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डेटा मैपिंग क्या है, I'll discuss in slides further down. Very very important. अगर हमने कोई डेटा लिया विदाउट अ कंसेंट, वी आर एक्सपोजिंग ourselves for penalties, we are exposing ourselves for regulatory action, there can be lawsuits and there can be reputation damage. अभी जैसे मैंने कहा लेजिटिमेट यूज गवर्नमेंट का फंक्शन रहेगा, कंप्लायंस विद सम अदर रेगुलेटरी एक्ट, उसका कंप्लायंस में अगर हम कुछ डेटा लेते होंगे, या जो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी में अगर लिया हो, अगर समझो जाते जाते मैं रास्ते में गिर गया एंड आई नीड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, दैट इज एन इमरजेंसी, तभी कंसेंट लेने को कोई रुकेगा नहीं, कंसेंट नीड नॉट बी टेकन। And whatever you are processing which does not override individual rights. फ्रेश कंसेंट कहाँ लेना है? पर्पस बदला, आपने पहले कंसेंट लिया था, बाद में और कुछ आपने सोचा कि और भी हम कुछ करेंगे, और वो जो नया करने का है उसका कंसेंट पहले का नोटिस में नहीं था जिक्र, तो आपको दोबारा कंसेंट लेना है। Keep this in mind. Any change, you cannot assume कि एक बार प्रिंसिपल ने कंसेंट दिया कि उसका कंसेंट मेरे पास है, ऐसे नहीं। कौन सा एक्टिविटी के लिए, see this is why I keep on repeating, purpose, notice, consent, purpose, activity. Purpose बदला, नया कंसेंट ले लो। There is no continuation of the same consent. समझो एक कंसेंट एक्सपायर हो गया, जैसे मैंने अकाउंट ओपनिंग का कहा, अकाउंट क्लोज हो गया, कंसेंट की बात खत्म हो गई, नया अकाउंट खोला, नया कंसेंट लेने का। ऐसे नहीं होगा कि पहले दिया था तो वो चालू है, नहीं, वो एक्टिविटी के लिए था, वो अकाउंट के लिए था। शेयरिंग विथ थर्ड पार्टीज, एटीएम का जिक्र किया, स्विच का जिक्र किया, यूपीआई का जिक्र किया, क्यूआर कोड का जिक्र करेंगे। वी आर शेयरिंग डेटा, वो करने के लिए भी विल हैव टू हैव सम कंसेंट इन प्लेस ना, कि दिस विल डेटा विल बी शेयर्ड विद द प्रोसेसर्स। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कोर एरिया एंड नॉन कोर एरिया। ये जरा समझ में क्यों लेना चाहिए। अगर हम बैंक है तो मेरा कोर एरिया क्या रहेगा, बैंकिंग। सो वॉट एवर कंसेंट आई टेक इज फॉर अ लेजिटिमेट यूज विच इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द BR एक्ट। नॉन कोर एरिया मार्केटिंग रहेगा, या MIS रहेगा, या मुझे एनालिसिस करना है, वगैरह वगैरह। सो उसके लिए क्लियर कंसेंट होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। I mentioned this, so again I'll be skipping some slides. So pre-consent notice issuance, purpose duration statement, consent seeking, consent recording, data principles के rights management, that is right of restriction, erasure, withdrawal, forgotten, nomination, and ongoing consent governance, that is renewals. We have to keep this in mind. बैंक्स को कहाँ का कंसेंट लेना है, ऑल बैंकिंग एक्टिविटीज, जहाँ जहाँ हम ले रहे हैं, कीप दैट कंसेंट ऑन रिकॉर्ड। नाउ एज पर लेजिटिमेट यूज, कदाचित ऐसे भी एक थ्योरी आएगी, इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड, बट टुमारो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट वी शुड नॉट कम इनटू प्रॉब्लम, सो इट इज ऑलवेज टू एयर ऑन द राइट साइड। बैंक को क्या करना है, ये जो 18 महीने का कालावधि दिया था जिसमें 4 महीने ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, ये सब चीजें करनी थी। गवर्नेंस
आपके पास डीपीडीपी रिलेटेड पॉलिसीज है क्या, उसके पास एसओपीज है क्या, हैव यू डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन क्या करेगा, किसकी जिम्मेदारी क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आप जब ये चीजें आउटसोर्स करते हो, आरबीआई क्या कहती है, साइबर सिक्योरिटी के सर्कुलर्स में आरबीआई ने एक बहुत इंसिस्ट किया हुआ है, क्या किया हुआ है, 90 वाले हैं या राइट टू ऑडिट इज वन पार्ट, एनीथिंग एल्स, डेटा मास्किंग, ड्यू डिलिजेंस एंड एसएलए। आप जब ये एसएलए करते हो, अभी क्या करना है, ये थर्ड पार्टी वेंडर में इसमें भी ड्यू डिलिजेंस करना है। बस इस ड्यू डिलिजेंस में आपको हिज कंप्लायंस टू डीपीडीपी एक्ट वही आपको देखना है, बिकॉज प्रोसेसर आपका काम कर रहा है, अगर वहां से ब्रीच हो गया यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो वेदर ही हैज दैट एडिक्वेट कैपेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कस्टमर डेटा, ये देखना आपका है। एंड दैट इज वेयर वी कम टू डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट एनालिसिस, which is there in the second part. Very important. Your SLA have to be redrafted to contain clauses relating to DPDP Act. आज तक हम सिर्फ आरबीआई ने कहा SLA बनाओ, we were doing that SLA based on परफॉर्मेंस। आपने परफॉर्म नहीं किया तो कितना पेनल्टी लगाएंगे। अभी हमको क्या देखना है, ब्रीच हो गया तो क्या करेंगे। सेकेंड पार्ट, डू वी नो कहां कहां वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कहां कहां हो सकता है। एक बैंक ने बोला डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर में है, होगा ही, बिकॉज दैट इज वेयर आपका सीबीएस चलता है। और कहाँ हो सकता है, क्लाउड में हो सकता है, एएसपी हम करते हैं उसके पास हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, आपका लोन पास हो गया, उसको लेटर कौन लिखता है, जो क्लर्क या ऑफिसर है, उसका डेस्कटॉप है ना, लैपटॉप या कंप्यूटर, उस पे रहता है। वो अगर उसको एसएमएस भेजता है योर लोन हैज बीन पास्ड, उसका एसएमएस में भी रहेगा। ईमेल भेजता है, उसका ईमेल में भी रहेगा। सो ये पूरा डेटा कहाँ कहाँ है, उसको डिस्कवर करने का एक एक्सरसाइज करना है हमें, बिकॉज वी अज्यूम कि सिर्फ सर्वर में रहेगा। हम सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है तो क्या करते हैं, यूएटी करते हैं, यूएटी में क्या करते हैं, आरबीआई का क्या धोरण है इसमें यूएटी के बारे में। डमी डेटा कितने, आज जो हम बैठे हैं हम में से कितने लोग डमी डेटा का वापर करते हैं यूएटी में, देखा भी नहीं होगा। सो ये जो डेटा डिस्कवरी है यूएटी एनवायरनमेंट में भी देखना है हमें। अगर मैं रिपोर्ट्स जनरेट करता हूं और रिपोर्ट जनरेशन के लिए 2 आदमी रखे हैं कि आप एमआईएस जनरेट करो, और वो लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको उसमें से रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, उनका डेटा भी देखो, उसमें क्या पर्सनल डेटा जाता है नहीं जाता है। सो डेटा डिस्कवरी, डेटा आइडेंटिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा स्टोरेज, कहाँ कहाँ ये डेटा है, डेटा डिस्पोजल कैसे करते हैं। अभी मैंने कहा बेल खाते टाइम उसका फॉर्म में था, उसके हाथ में, बेल वाले के उधर। कंप्यूटर आप बेचते हो, खराब हो गया या ऑब्सोलीट हो गया, वो कंप्यूटर के साथ बैंक का डेटा जाता है नहीं जाता है, वो हमने देखा है, वो भी देखना पड़ेगा। पेन ड्राइव,
वो छोड़िए, आपके एएमसी करने के लिए लोग आते हैं और एएमसी करने के लिए पेन ड्राइव लगाते हैं, वो कोई कॉपी कर सकता है क्या? वो देखा है? वो भी देखना है। और ये सब everyone has to do DPI। अब इसमें एक बहाना है। DPI is mandated only to significant data fiduciary. It is not mandated to normal data fiduciary। लेकिन जब तक आप ये DPI नहीं करेंगे, आपका गैप्स आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक आप खुद का पैथोलॉजी टेस्ट नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या इलनेस है? ठीक है। और बाद में प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन सबने किया है बिकॉज साइबर सिक्योरिटी के नॉर्म्स है, वो सब हमने इसमें किए हुए हैं। कंप्लायंसेस, मैंने कहा नोटिस मैनेजमेंट, कंसेंट मैनेजमेंट, राइट्स मैनेजमेंट, ब्रीच मैनेजमेंट, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हमें करनी है। ये डेटा डिस्कवरी, आई वोंट गेट इनटू दैट बिकॉज ये सब में बातें मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। Where data resides, data center, devices, offline storage, mobiles, online location, databases, vendor location, मैंने आउटसोर्स किया है, उसके पास भी डेटा है। DPI में I have to understand what risk I carry। लीक हो गया तो क्या क्या डेटा कहाँ है, और वो लीक हो गया तो मेरे क्या क्या उस पर timelines। We have to go live by 13th of May 27। We should have in the quarter 1 of 26 started the, अभी गया मार्च महीना भी खत्म हो गया, so we are behind by 4 months। Okay, Q2 Q3 टेक्नोलॉजी पॉलिसीज वगैरह सब करने हैं। Q4 that is of 26 and Q1 of 27 रेडीनेस, और क्या बोलते हैं उसको, UAT, इसका हमको करना है, एंड गो लाइव बाय May of 27। I'll just skip क्योंकि we have to complete in time and this is important। पेनल्टी कब लगती है? DPP देखेगा व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ योर ब्रीच, आपका ब्रीच कितना सीवियर है, उससे प्रिंसिपल की कितनी हानि हो सकती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द वायलेशन, कितने दिन से ये चालू है आपका ब्रीचेस, या कितने दिन के बाद आपको समझ में आया कि ब्रीच हुआ था। टाइप ऑफ डेटा इन्वॉल्व, कौन सा डेटा लीक हुआ है, और वो न हो करके आपने क्या मिटिगेटिंग मेजर्स डाले हुए हैं। फेलियर टू इम्प्लीमेंट रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड अप टू 250 crores। फेलियर टू नोटिफाई डेटा ब्रीच, ब्रीच हुआ लेकिन आपने नोटिफाई नहीं किया, 200 crores। ब्रीच ऑफ चाइल्ड डेटा 200 crores। ब्रीच ऑफ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी 150 crore। ब्रीच ऑफ डेटा प्रिंसिपल ड्यूटीज, यानी अगर मैं प्रिंसिपल हूं और मैं इंफॉर्मेशन देते समय मैंने कुछ मिसचिफ किया तो मुझे भी 10,000 रुपया पर डे का फाइन लग सकता है। और ये ऑल इंक्लूसिव है, एवरीथिंग कवर्ड बट नॉट कवर्ड 50 crores। सो जो भी ऊपर नहीं है वो 50 करोड़ में आपको डेटा प्रिंसिपल ड्यूटी इज वेयर आई कैन इम्पोर्सनेट। हु इज द डेटा प्रिंसिपल, जो मैं डेटा दे रहा हूं, हु इज द डेटा प्रिंसिपल। अगर मैंने गलत इंफॉर्मेशन दिया, अगर मैंने मिसचिफ क्रिएट किया, अगर मैंने इम्पोर्सनेट किया, अगर मैंने फ्रिवलेस कंप्लेंट किया, यानी कंप्लेंट करने के लिए कंप्लेंट किया, they are all misuse of this data principal duties. So as a principal I can be fined।
अदर रीजंस जो है, जो लास्ट था 50 करोड़ का, फेलियर टू फुलफिल डेटा प्रिंसिपल राइट्स, यानी उसके जो राइट्स है वो फुलफिल करने के लिए अगर मैंने कुछ बाधा किया, वो कंसेंट मैकेनिज्म मेरा अपूरा है, तो कंसेंट नोटिसेस आर नॉन कंप्लायंट, आई एम नॉट गिविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, improper notice provisioning and general non-compliance, all this will attract 50 crores. Data principle जो साहब आपने पूछा, we have false complaints, misuse of rights, furnishing false information and suppression of material facts. Fiduciary and principal are the key persons who will be liable for the penalties. Now I will stop at this, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जब भी मैं बात करता हूँ, आरबीआई ने नहीं कहा, हम क्यों करें? ये सभी सर्कुलर्स आप देख रहे हैं, ये आरबीआई ने दिए हुए हैं। सभी सर्कुलर्स में जो डीपीडीपी एक्ट के कंप्लायंस में जो जो करना है, ये सभी चीजें ये सर्कुलर्स में मेंशन किए गए हुए हैं। तो आरबीआई ने भले डायरेक्टली डीपीडीपी एक्ट का रेफरेंस दिया नहीं होगा, फिर भी वो कवरेज है और हमें उसका कवरेज करना है। साइबर सिक्योरिटी का रहेगा, डिजिटल पेमेंट कंट्रोल्स रहेगा, आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज रहेगा, केवाईसी पे बहुत बड़ा सर्कुलर है, साइबर सिक्योरिटी का हैंडबुक है, सभी चीजें मैं एक लिस्ट भी देता हूँ, ये सर्कुलर्स का नंबर देके यू कैन लुक इट अप। सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस, इट इज नॉट सो इजी, it is not so simple. We have already spent 4 months doing nothing, and अगर banks are considered an SDF, तो ये सभी चीजें करने के लिए हमें सिर्फ आने वाले नवंबर तक समय मिलेगा। ध्यान में रखो, नवंबर ऑफ 26। And don't wait and say आरबीआई ने नहीं बताया। This is a central act. RBI will not comment on a central act. Income Tax Act, RBI does not say anything on Income Tax Act. FIU PMLA Act, RBI does not say anything on FIU PMLA Act. GST Central Act, RBI does not say anything, but still they सबको लागू है ये। डीपीडीपी एक्ट भी लागू है, आरबीआई नहीं बोलेगा। और आप डोंट वेट कि यू कम टू अ स्टेज वेयर यू कैनॉट डू एनीथिंग, इट विल बी टू लेट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, द टाइम इज टिकिंग। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न रहेंगे? प्रश्न न रहना यानी आपको इधर कुछ समझा नहीं या सब कुछ पता था लेकिन कुछ करना नहीं है। सर ये जो पेनल्टी जो है मैक्सिमम पेनल्टी उसका ब्रीच के हिसाब से वही मैंने कहा ना कि दे विल इवैल्यूएट द ग्रेविटी ऑफ द ब्रीच, रिकरेंस ऑफ द ब्रीच, योर पोस्चर फॉर प्रोटेक्टिंग, आपने क्या क्या कंट्रोल्स डाले हैं वो सब वो देखेंगे, आपने मिटिगेट करने के लिए क्या क्या मेजर्स डाले हैं नहीं डाले हैं वो देखेंगे। क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में नहीं है? कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस? कोई सिर्फ पेनल्टी की है। हाँ, ये बोल रहे कोई जेल में नहीं डालेंगे और ये सब होगा कि नहीं होगा, तो नहीं। पेनल्टी लग जाएगी वही बड़ी है। पेनल्टी का पैसा नहीं होता। वकील साहब, आई थिंक यू कैन से, वो पूछ रहे हैं कि जेल में डालेंगे क्या? There is no provision of any penalty or imprisonment, but the penalty is there. It's like up to 250 CR, but no imprisonment. खाली पैसा थी, penalty छुड़ी, तो पैसा सारा है। Compensation बिल्कुल से। हाँ। अने
Sir, if possible, tell them about the compensation. Penalty to compensation. आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, दैट वाज कि अगर आपके साथ ब्रीच हुआ जिसके वजह से आपको कोई लॉस हो गया तो क्या होगा? पेनल्टी तो उनको होगा, या बट व्हाट अबाउट कंपनसेशन? सो वो कंपनसेशन जो है, दैट यू आर एलिजिबल टू हैव द कंपनसेशन अंडर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 43 ऑफ IT एक्ट. वो पेनल्टी से ज्यादा, दैट वुड बी द एडिशनल अमाउंट टू डेटा फिड्यूशियरी. इसमें एक चीज आई जस्ट वांट टू मेंशन कि एक चीज आपको ध्यान में रखनी है. बहुत सारे बैंक्स हैं, हमें लगता है हमें सिर्फ BR एक्ट लागू है, ऐसे नहीं है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लागू है और दैट इज इक्वली स्ट्रिंजेंट एंड दैट हैज आई थिंक imprisonment. No, sir, compensation. नहीं. Even imprisonment for data breach. Yes. So under IT Act you can go to jail, not under DPDP. Yes. So we have to be very careful. Don't be complacent कि RBI Act में ये नहीं है. Actually as governance people हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन से acts लागू हैं. Unfortunately, most of us don't know which acts are applicable to us because we think that only our BR Act is applicable. ऐसे नहीं है. हमारे यहाँ कितने लोग नेटवर्क्स वापरते हैं? Which act governs networks? Are you aware? There is something called an India Post and Telegraph Act. वो भी लागू है और उसका contravention, I may not have the details, but Yes, sir. हाँ, like for example, हम एक PSTN नेटवर्क हमारे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं. It is not allowed because a private network cannot be connected to a public network. You can be prosecuted if you do that. So जब भी हम as an organization देखते हैं these governance rules and acts, we should be aware of all the acts, not just the Banking Regulation Act. Maybe we can have a separate session for this. Sir, there is a saying, ignorance of law is no excuse. No excuse. सर इन्होंने स्टेटमेंट जो बोला ना उसके लिए यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा पर्सनल डेटा है वो ब्रीच हुआ, मैंने कंप्लेन की, कंपनी के ऊपर तो वो पेनल्टी लग गई, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा? पर्सनल डेटा मेरा ब्रीच हुआ है. नहीं, that is not covered in DPDP. DPDP. It is covered in the IT Act. यस, बट इसमें ओनली जो Only fiduciary. फिड्यूसरी के ऊपर है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा. See, that is why. So we have to look at all acts in totality. Because if someone wants to screw your happiness, he can file a case in IT Act. और ombudsman से कोई स्कीम है उसमें ombudsman See, ombudsman यानी क्या है कि there is something called as a data protection board. अगर आपको उनके खिलाफ जाना है, then there is a provision of going to a appellate which is called as a ComSat. यानी उसका जो टेलीकॉम का एक ट्राइब्यूनल है, you can go to the tribunal and complain against the DPP. It is similar to ombudsman, but this is at a appellate level. But see, these processes are yet to be defined. वो मई तक हो जाएंगे एंड देन वो प्रोसेस कैसे अप्लाई करने का, कैसे अपील में जाने का, वो सभी चीज़ें इट विल इवॉल्व. सर आपने पूरे एक्ट के बारे में किसी बैंक में अभी कुछ काम उसको बैंक शुरू नहीं किया है. तो अपने ग्राउंड जीरो से उसको स्टार्ट करना है तो मतलब कैसे वो स्टार्ट? હિતેશભાઈ જરાક ઊભા થઈને આમ ફરીને બોલો એટલે બધાને ખ્યાલ આવે. ઘણા બધા બેન્કરો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો કદાચ આ એક્ટ હું તો ખાસ જે પેનલ્ટીના ક્લોઝ હતો ને એનાથી ગભરાઈને ખાસ આવ્યો,
કારણ કે 2500 કરોડ ટોટલ બેંકનો ધંધો હોય ને એમાં 250 કરોડની પેનલ્ટી થાય તો એ ચૂકવવી કેવી રીતે? तो मेरा सवाल यही है कि मोस्ट ऑफ द बैंक आर लैकिंग, जो ड्यू डेट है किसी ने भी कुछ काम नहीं किया होगा. अगर कोई बैंक काम करना चाहती है तो मोस्ट ऑफ द सब बैंक मतलब विलिंगनेस तो अब जान रहे हैं तो काम करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है. तो कहाँ से शुरू करें और प्रायोरिटी किस चीज़ को दें कि उसकी वजह से इसका मतलब बैंक कंप्लाइंट रहे? ये डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है? व्हाट इज द इसेंस ऑफ द डीपीडीपी एक्ट? कंसेंट लेके जो भी डेटा जो पर्पस के लिए प्रोटेक्ट डेटा. प्रोटेक्ट, यस. So first step is know your data. What is your data? Where is your data? For what purpose you have taken that data? So पहले जो अस्तित्व है वो पहले आप जान लो और उसमें आपके गैप्स क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करो. तो उसका गैप एनालिसिस करना पड़ेगा. वो होने के बाद आपके बैंकिंग प्रोसेसेस क्या क्या हैं और वो बैंकिंग प्रोसेसेस फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या डेटा लेना है या ले रहे हैं, उसके लिए नोटिस मैनेजमेंट एंड कंसेंट मैनेजमेंट आएगा. एंड देन यू हैव टू मैप नोटिस, कंसेंट, पर्पस, एक्टिविटी. बिकॉज जो पर्पस के लिए आपने वो नोटिस दिया था वही एक्टिविटी आप कर रहे हैं कि नहीं वो देखेंगे. देन वी कम टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा. अभी प्रोटेक्शन ऑफ डेटा इज इन मल्टीपल फॉर्म्स. जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी का जो सर्कुलर आया था उसमें डेटा मास्किंग, एक्सेस कंट्रोल्स, स्टोरेज कंट्रोल्स वगैरह, ये सब जो 7 पैरामीटर्स, 7 डोमेन्स हैं, पेरीमीटर लेवल, नेटवर्क लेवल, एप्लीकेशन लेवल, डेटा लेवल, डेटाबेस लेवल, एंड यूजर लेवल एंड क्लाउड, ये सभी पे क्या क्या कंट्रोल्स आपने डाले हैं और ये कंट्रोल्स डालने के बाद आप उसको वैलिडेट करते हैं क्या, उसका आप ऑडिट करते हैं क्या. हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग पेमेंट सिस्टम्स, IMPS, UPI वगैरह वगैरह? Almost all. Are you aware that one more audit has been added called Gap Assessment of Internal Controls Adequacy? VAPT में कवर नहीं हो जाता? नहीं, ये अलग ऑडिट है which has to be done on an annual basis. See, this is a problem. We have to read circulars and this has been mandatory from January. तो जब तक ये once in a year आप नहीं करेंगे, you will be contravening one more circular of. See, I am not personally saying anything. मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं compliance का जो emphasis है ये बहुत सीवियर है RBI का. और compliances जो नॉन कंप्लाइंट रहने वाले हैं, RBI will have a penalty, IT Act will have a penalty, DPDP Act will have a penalty, and cumulative you think of the effect. So आपका क्वेश्चन आंसर इज वेरी सिंपल. फर्स्ट, नो योर डेटा, आइडेंटिफाई वेयर इट इज, व्हाट इट इज, हाउ इट इज, उसमें गैप्स क्या क्या है फॉर प्रोटेक्शन. देन सेकेंड, लुक एट द प्रोसेसेस. कौन से प्रोसेसेस में क्या क्या डेटा लगता है, कहाँ लेता है, कहाँ स्टोर होता है, जहाँ इंटरनल है, कहाँ एक्सटर्नल है, कहाँ थर्ड पार्टीज है, फिर वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. और ये सभी चीज़ें करने के लिए आपको क्या चाहिए? पॉलिसीज चाहिए, SOPs चाहिए, SLAs चाहिए. Whether all this, see, all this will work in simultaneously. ऐसे नहीं कि एक होगा फिर उसके बाद दूसरा करेंगे, नहीं. We'll have to have 3 teams to look at all this. And एक चीज़ मैं बोलता हूँ, again, people will crucify me for saying this. This is not an IT department problem. This is a banking operations problem. क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशंस में क्या क्या डेटा चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, ये बैंकिंग ऑपरेशंस डिसाइड करेगा, नॉट IT. IT is just one part where they will protect the data. IT is not going to tell you कि आप ये डेटा इसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं या इसके लिए वापर रहे हैं, इसका कंसेंट लेना है. सर, आप जो बोल रहे हो ऑपरेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ઓપરેશન ડિપાર્ટમેન્ટે ધ્યાન રાખના પડે. ઓકે, તમારું જરા ઇન્ટ્રોડક્શન આપજો. વરાછા કોઓપરેટિવ બેંકમાંથી લોન એજન્ટ છું. હવે સપોઝ અમારા કસ્ટમર પાસે અમારે વિઝિટ કરાવી છે અથવા તો બેંકે કોઈ સેવિંગ ખાતું ઓપન કરવું છે કે કરંટ ખાતું ઓપન કરવું છે. હવે મારે જે તે દુકાનની મારે વિઝિટ લેવા મોકલવો છે, મારે કોઈ એજન્સીની એપોઇન્ટ કરવી છે, બેંકના સ્ટાફને મારે નથી મોકલવી, કોઈ એજન્સીને મારે મોકલવી છે, તો મારે ડેટા આપવો પડશે એને એજન્સીને, એને એડ્રેસ આપવું પડશે, એનું નામ આપવું પડશે, એનો મોબાઈલ નંબર આપવો પડશે. તો બેંકમાંથી જે મારી પાસે ડેટા અવેલેબલ છે એ હું ડેટા હું એને આપીશ અને પછી જે વિઝિટ કન્ડક્ટ કરીને મને એ રિપોર્ટ આપશે, તો એ DPDP એક્ટમાં એ ડેટાનું વાયોલેશન ગણાશે? યસ.
because you are sharing personal information of that entity. See, अभी अगर ये कंपनी का अकाउंट है तो नहीं होगा, इंडिविजुअली होगा। किसी ने अकाउंट ओपन करवाया, उसका मुझे विजिट लेना है उसका। तो रहेगा। और जब भी आप वो प्रोसेस कर रहे हैं लोन, नाउ यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ लोन पर्सपेक्टिव, करंट या सेविंग अकाउंट भी ओपन कर मैं विजिट करूंगा। सो मेंशन इन दैट कि आई एम टेकिंग कंसेंट एंड दीज आर द पॉसिबल थिंग्स। अब ये छोड़िए, कल डिफॉल्ट हो गया एंड यू आर गोइंग टू टेक सरफेसी और वट एवर एक्शन, देयर ऑल्सो यू आर गोइंग टू शेयर सम डेटा विद समवन, यू विल हैव टू टेक कंसेंट बिफोर कि अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तो मैं क्या क्या आपका कहाँ डेटा वापरूंगा। मतलब मुझे एजेंसी को डेटा नहीं देना बैंक में से। नहीं देना ऐसे नहीं है, देने के पहले कस्टमर का कंसेंट रिकॉर्ड पे होना चाहिए। ओके। अभी उनका पूछना ये है कि अगर उनको नया अकाउंट खुलवाना है, सेविंग्स अकाउंट, तो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ से कोई जाता है, अगर उनको अभी बैंक में से नहीं भेजना है और किसी और एजेंसी को देके भेजना है, आउटसोर्सिंग करना सही है। तो जब भी आप कोई भी कस्टमर का पर्सनल डेटा शेयर करते हो, दिस एक्ट कि आप शेयर करने वाले हैं, ये उसको पहले ही बोल के उसका कंसेंट लेना चाहिए कि मैं ये एक्टिविटी के लिए ये मैं शेयर करने वाला हूँ विद अ थर्ड पार्टी एंड हिज कंसेंट हैज टू बी ऑन रिकॉर्ड। પેલો મંજૂરી આપે તો જ તમે આપી શકો, પરમિશન લેવી પડશે, પરમિશન લેવી પડશે, પરમિશન લેવી પડે, પરમિશન લેવી પડે। એક વસ્તુ સમજી લો કે તમારું જે તમે કીધું ને એમાં એક વખત એવું થઈ શકે, જનરલી અમે બહુ વખતથી કહીએ છીએ કે કન્સન્ટ તો અત્યારે આપણે ડીપીડીપી એક અંતર્ગત પણ તમારે એજન્સી સાથે તમારો એક છે તે તમારો એગ્રીમેન્ટ હોવો જોઈએ અને એગ્રીમેન્ટ તમારો અને તમારું કેવું કે તમારું ડિસ્ક્લોઝર તમારું જે કંઈ પણ નહીં કરે તમે લીગલી બાય ડેને કરી શકો। એટલે નોર્મલી ડીપીડીપી વગર પહેલાં અમે આ રીતે કરતા હતા અંદર એમાં કે તમે કોઈ પણ હવે થર્ડ પાર્ટી જેટલા બી વેન્ડર્સ છે આપણા, કારણ કે બેંકે બહુ બધી સેવા આઉટસોર્સ કરવી જ પડે છે, બરાબર, અને એવરી ટાઈમ આપણી પાસે કોઈ વખત સેમ એજન્સી આવે અને કોઈ વાર આપણે નવી છે તે એજન્સીને આપણે કરતા હોય, પણ એવરી ટાઈમ તમારે જે કોમ્પ્લાયન્સ છે એમાં તમારે દરેકે દરેક વસ્તુ તમારા એગ્રીમેન્ટમાં મેન્શન કરવી પડે અને જેને બી તમે આપો તો તમારો એગ્રીમેન્ટ જો પ્રોપરલી તમે કરી દો તો મોટે ભાગે વાંધો નહીં આવે। તમે એટલીસ્ટ તમારો હાથ ઉપર હોય કે તમે એને ગમે ત્યારે, કારણ કે આ એક્ટની અંદર બધી જે પ્રોવિઝન્સ છે ને નોર્મલી તમારું કેવું છે કે તમે કીધું પેનલ્ટી ક્લોઝ બધા હેવી છે, એટલે કોમ્પ્લાયન્સ મેનેજમેન્ટ જો તમે એગ્રીમેન્ટ લેવલથી બી કરતા હો પછી હવે નેક્સ્ટ હવે ડીપીડીપી અંદર એડ થશે અંદર એમાં એ હિસાબે। सर एम प्लस मानो कि आउटसोर्सिंग बैंक करे छे तो उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी एग्रीमेंट ब्रीच करते हैं, डेटा ब्रीच करते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैंक रहेगी कि वो आउटसोर्सिंग एजेंसी रहेगी? बैंक જ રહે, સીધી પ્રિન્સિપલ તમે છો, अच्छा, તમે આપો છો એ તો એજન્ટ છે, તો પ્રિન્સિપલ એજન્ટના કાર્ય વધરથી પ્રિન્સિપલની જ જવાબદારી આવે, પણ તમારે એને લાયબિલિટીને તમે જોઈન્ટલી તમે પછી અંદર મેન્શન કરીને એગ્રીમેન્ટમાં કવર કરી શકો, તમે એગ્રીમેન્ટમાં કવર કરી શકો અંદર એમાં કે ભાઈ તમે એમાં સિવિલ કોની લાયબિલિટી તમારે કેટલી કેટલી થઈ શકે તેવું મેન્શન કરી શકો। इसमें एक मज़ेदार चीज़ है, 99% ऑफ द एग्रीमेंट्स जहाँ पेनल्टी क्लॉज डालते हो उसमें क्या लिखाता है वेंडर जो आप थर्ड पार्टी से करवाते हैं, माई लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ फीस पेड टू मी इन दिस ईयर। तो क्या करेंगे? જનરલી આ આપણે સરે જે કીધું એ છે ને, તમે જેટલા ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગમાં છે આપણા ક્લાઉડમાં જેટલા ડેટા છે એ એગ્રીમેન્ટમાં આ ક્લોઝ અંદર હોય છે કે તમારો એન્યુઅલ ફીસ તમારી જે છે તેનો તમારે તેટલી અમારી લાયબિલિટી છે, એટલે અમે કાયમ લડીએ, કારણ કે જ્યારે અમે એગ્રીમેન્ટને વેરીફાઈ કરીએ બેંકના ત્યારે અમે તો કે ભાઈ આ તો 2 લાખ ને 2 લાખ ને 5 લાખની ધારો કે 25 લાખની ફી છે અને અમારી ફી તો 2.5 કરોડની છે, 250 કરોડની છે, બરાબર, તો મને કેવી રીતે થાય? એટલે દેટ ઇઝ ધ ફાઇટ। હવે તેમાં પછી તમારે ઇન્સ્યોરન્સ, સાયબર ઇન્સ્યોરન્સ ને બધી વસ્તુનો બધો ક્લોઝમાં તમારે આવે પછી કે કેવી રીતે તમે કવર કરી શકો, એ સાયબર ઇન્સ્યોરન્સમાં પછી જાય આખી વાત તમારી। एग्रीमेंट में अगर नहीं, बट साइबर इंश्योरेंस में अगर आपका लैप्सेस दिखेगा तो आपको नहीं होगा, नहीं, वो भी क्लोज देखना पड़ेगा, उसमें भी क्लोज देखना पड़ेगा साइबर इंश्योरेंस में भी कि તમારી નેગ્લિજન્સી છે, તમારા જે કંઈ બી તમે કોમ્પ્લાયન્સ મેનેજ નથી કર્યું તો એ બી તમારા એગ્રીમેન્ટમાં એ બી તમારા સાયબર ઇન્સ્યોરન્સને બી 2 વાર વેરીફાઈ કરવો પડે, કારણ કે એમાં બી ઘણા લૂપહોલ રાખેલા હોય છે જે ઇન્સ્યોરન્સ કરતી હોય કંપની આપતી હોય ત્યારે, એટલે એ બધા તમારે ડિટેલમાં થોડા સ્ટડી કરવા પડે લીગલી એમાં।
બધી ઓથોરિટીઓને પણ બધા બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાની આવે છે. See, that is not covered under the act. See, the पहले slide में लिखा था with any government, see that you are sharing because of regulatory requirement. So with any government body if you are sharing information, that is not covered under. हाँ जी सर, अगर अभी ये जब एक्ट लागू होगा उसके पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका हमें कंसर्न लेना पड़ेगा, तो क्या उसका कंसर्न हम डिजिटली उनको कुछ माध्यम से उसका ले सकते हैं क्या? नहीं, जैसे मैंने कहा जो कंसेंट का प्रोसेस है हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू द कस्टमर, और वो कंसेंट विड्रॉल का एक्सेस भी कस्टमर को होना चाहिए. तो एक पोर्टल जैसा, जैसे हम एक उदाहरण जैसे देता हूं, कोई भी कुछ ऐसा पोर्टल बना के कस्टमर जैसे आप वेबसाइट पे एक लिंक डालो, वेबसाइट पे जाके कस्टमर बोलेगा कि आई गिव माई कंसेंट. वो कंसेंट आपका कौन से चीज के लिए है, पर्पस, नोटिस, कौन से नोटिस का कौन सा कंसेंट था, कौन से पर्पस के लिए है, और वो पर्पस में क्या क्या एक्टिविटी आप करने वाले हैं, ये पूरे का आपका मैपिंग करना है. मतलब डिजिटली उसका कंसर्न डिजिटली होगा उसका फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है. ये कोई सॉल्यूशन प्रोसी. हाँ, एक चीज मैं बोलने का रह गया मेरा. देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड कंसेंट मैनेजर. हाँ, अभी 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, लेकिन इट्स नॉट बिकम ऑपरेशनल. यानी क्या है कि कंसेंट मैनेजर यानी क्या है, दे आर एन एंटिटी अप्रूव्ड बाय मेटी who can perform the function of taking consent from a principal and giving it to a fiduciary, यानी पोस्ट ऑफिस जैसा. सो कंसेंट मैनेजर पे आप लॉगिन करो, दे विल गिव यू अ लॉगिन क्रेडेंशियल, और आप कौन से फिड्यूशियरी के लिए कंसेंट दे रहे हैं वो उसके लिए वो जाएगा. फिड्यूशियरी हैज टू कन्वे दिस नोटिस टू द कंसेंट मैनेजर एंड कंसेंट मैनेजर विल फॉरवर्ड इट टू द प्रिंसिपल. हाँ, बट for us as banks, I will prefer it be in house. That is more convenient, क्योंकि fiduciary कौन है, क्या है, कितने लोगों को आपका डेटा जाता है, वो कहाँ आप ट्रैक करेंगे. કેમ કે આ ડેટા બ્રીચ થાય તો તમારે ટ્રેક કરીને કહેવાનું છે 72 અવર્સમાં, નહીં તો 72 અવર્સમાં તમારે જાણ કરવાની છે જેનો ડેટા બ્રીચ થયો છે તેને અને ઉપર ડીપીબીને. એટલે બંને જગ્યાએ તમારે કરવાનું છે. હવે તમે ક્યાં બ્રીચ થયો હોય ક્યાં શોધવા જશો? આપણી પાસે કંઈ એટલી ફૂલ ફોર્મ આઈટીની હોય નહીં, એટલે આપણે ઇન હાઉસ કરીએ. અને જેમ સાહેબે કીધું તેમ કે આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરીએ, બહુ સરસ પ્રશ્ન તમે પૂછ્યો હિતેશભાઈ, કે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, એટલે ડેટા ક્યાં છે અને આપણી એસઓપી શું છે, આપણી બધી એ પહેલાં આપણે ચેક કરીને ત્યાંથી શરૂઆત કરવી પડશે. આ બધાને જ લાગુ પડે છે, સોસાયટીઝને ને બેંક્સને ને બધાને લાગુ પડે છે, એટલે બધાએ આ કરવું જ પડશે. તમારા આરબીઆઈમાં એક નોર્મ્સ એવું બી છે, આરબીઆઈ નોર્મ્સ પ્રમાણે સિક્યોરિટીમાં કે તમારે આ તો ડીપીડીપી એક્ટની વાત છે, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ તમારે કોઈ બી બ્રીચીસ છે તમારે તો સર્ટિનને તમારે રિપોર્ટ કરવાનો તમને નોર્મ્સ ઓલે છે જ ઓલરેડી. એટલે એ તો તમારે કંપની બેંક કોઈ કરતી નથી હોતી કોઈ બી એમાં મોટે ભાગે. તો એ બી એક નોર્મ્સ આમાં વધારે ડીપમાં બધી આવ્યું છે અંદર. એમાં मैं 2-3 मुझे मैसेजेस आए कि शेयर द पीपीटी, तो मैं पीपीटी चेंबर को देता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा है. वो लिंक फिर वो आपको शेयर कर देंगे, यू कैन डाउनलोड एंड रीड इट, देयर इज नो प्रॉब्लम. Sir, I am Rakesh Chawda from the Associate Cooperative Bank. As you said, there is a gap audit is there. Our bank has also gone for the gap audit. I would request you, as you said, that due diligence and the SLA. So please focus on the SLA. What is the DPDP Act? मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा SLA पे, तो वो आप थोड़ा फोकस कीजिए. थैंक यू. सी, अभी डीपीडीपी एक्ट का जो नॉर्मल एसएलए से अलग कहाँ रहेगा, इज मेनली फोकसिंग ऑन पर्पस, यूज, डेटा रिटेंशन, डेटा डिस्पोजल. यानी जो अभी ना आम आपके एसएलएस रहेंगे उसमें आप सिर्फ नॉर्मली परफॉर्मेंस का बात करते कि इफ योर परफॉर्मेंस इज बिलो दिस थ्रेशोल्ड फिर पेनल्टी, या आपका जो भी काम करने का है उसमें कुछ डिविएशन हो गया या लैप्सेस हो गए तो पेनल्टी वगैरह वगैरह. लेकिन डीपीडीपी का मेन इसेंसेस कहाँ रहेंगे कि
what data you are going to share with him. B, for what purpose that data is being shared. 3, responsibility of the processor to maintain and protect that data. यानी उसके यहाँ से ब्रीच न होए इसके लिए उसने क्या क्या किया है, तो और उसका सेटिस्फैक्शन हमको लेना है एज फिड्यूशियरी। एक मैं सीधी बात करता हूँ, यानी नॉट रिलेटेड टू डीपीडीपी। अभी हम एएसपी पे जाते हैं, ओके, एएसपी पे जब भी जाते हैं तभी हम क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर जो है जो सॉफ्टवेयर देता है उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसने कोई एक डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर से उसने जुड़ा हुआ है। नाउ आपका कॉन्ट्रैक्ट किससे है? एएसपी वेंडर। एएसपी वेंडर से। अगर वो जो डेटा सेंटर वाला है उसके यहाँ ब्रीच हो गया, विच अफेक्ट्स यू, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बट इज दैट कवर्ड इन योर एग्रीमेंट? बिकॉज आपका एग्रीमेंट सिर्फ सीबीएस रिलेटेड रहेगा। सो सिमिलरली ये एसएलए में भी इफ देयर इज अ ब्रीच फ्रॉम अ प्रोसेसर एंड, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वगैरह ये सब जो क्लॉजेस है दैट हैज टू कम इनटू एसएलए। वहाँ थोड़े पॉइंट्स है, आई विल शेयर दोस पॉइंट्स व्हिच ऑल नीड टू बी कवर्ड। लेकिन सी क्या है कि इसमें थोड़े पॉइंट्स ऐसे होने वाले हैं जो कोई भी वेंडर एग्री नहीं करेगा, बट समवेयर सेम थिंग लाइक शेयरिंग ऑफ पेनल्टी। अगर बैंक को 250 करोड़ लगेगा और आप बोलेंगे कि आपकी वजह से हो गया है, कोई नहीं आएगा। सो समवेयर यू नो वी हैव टू बी ऑल्सो स्ट्रिक्ट कि ये चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं, ये एक्ट कह रहे हैं, और जैसे ही आपको लागू है वैसे उसको भी लागू है, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ फिड्यूशियरी फॉर समवन। Any other questions? I am very thankful to Madam and everyone on the AS plus the Southern Gujarat Federation, I mean Chamber of Commerce for this opportunity, and I really enjoyed आपसे सबसे interaction करते हुए। See, एक ही है, let's not keep it to ourselves. Okay, एक अगर आपके सीनियर्स नहीं आए हैं, आपका जिम्मेदारी है कि आप जाके वो सीनियर्स को जाके इसका ग्रेविटी बताना है। अगर सीनियर्स आए हैं, दे हैव टू गो एंड इन्फॉर्म द बोर्ड। इफ बोर्ड मेंबर्स आए हैं, देन दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुटिंग दिस इन एक्शन। सी, इट्स नॉट फॉर अस, इट इज़ फॉर एवरी वन ऑफ अस। और एक चीज़ है, ये अपना कोऑपरेटिव सेक्टर इतना वॉलेटाइल है कि एक कोई बैंक में एक छोटी सी चींटी छींकी तो पूरा सेक्टर हिल जाता है। So we have to be very careful and while give the opportunity, किसी को भी सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और ये पेनल्टी के पैसे बचा के रहे। थैंक यू सो मच। તો પેલું એ થયું કે આઈટીમાંથી આટલા જણ આવશે, હું કહું ભાઈ આ આઈટીને નથી લાગુ પડતું, તમારે બધાને જ લાગુ પડે છે, પ્લીઝ મુકેશભાઈ। Thank you Raviji for sharing and guiding us on DPDP Act. I also thank you all the audience for patience hearing. I also thank you Jaina Ben, Snell Bhai and Chintan Bhai for organizing such a nice type of program. And last but not the least, I also thank you staff member who take pen for the arranging such a nice arrangement in this hall. Thank you all of you. Thank you.